बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम CS403 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश इज सेम एज इक्वी ज्वाइन विद अ स्लाइट डिफरेंस। ए नेचुरल ज्वाइन, बी सेमी ज्वाइन, सी आउटर ज्वाइन, डी थीटा ज्वाइन। थीटा ज्वाइन useful when joining tables on columns that have different names or data types. Equijoin retrieve data from two or more tables where the columns being compared have the same name and data type. Semijoin, a join that returns only the rows from one table that have matching rows in another table. Natural join, a join that matches columns with the same name in two tables. It is same as equijoin with a slight difference. It appears only once in the output table. Outer join. An outer join is a type of join that includes all the rows from one or both of the tables being joined, including the non-matching rows. तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेचुरल जॉइन, बिकॉज ये सेम होता है इक्वी जॉइन के। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, conceptual database design is implemented using a dash. A hierarchical data model, B semantic data model, C relational data model, D network data model। तो इन सबको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले है hierarchical data model. A data model where data is organized in tree-like structure with parent-child relationship between data records. तो hierarchical data model ट्री एक दरख्त की शक्ल में होता है। उसके बाद semantic data model, a data model that captures the meaning and relationship between data elements in a specific domain. It is conceptual data model. semantic data model जो है ये conceptual data model होता है और ये मीनिंग और रिलेशनशिप डाटा की जो हैं उन्हें कैप्चर करता है। उसके बाद रिलेशनल डाटा मॉडल, a data model that organizes data into tables with relationship between tables based on common fields. Relational data model जो है ये डाटा को टेबल्स के अंदर ऑर्गेनाइज करता है। Network data model, a data model where data is organized in a graph-like structure with records connected by multiple relationships. Network data model ग्राफ्स की फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा semantic data model. Question number 3 है, which constraint is generally used for efficiency purpose in the data entry process? A null value, B integer value, C default value, D string value। तो हमारे पास सारे constraints लिखे हुए हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है प्राइमरी की constraint. Ensure that a column or group of column uniquely identify the each row in a table. यानी कि टेबल के अंदर हर रो और कॉलम जो है वो एक यूनिक हो, कोई भी रो या कॉलम आपस में सेम ना हो। सेकेंड है foreign key constraint. Define a relationship between two tables ensuring that the values in a column in one table correspond to the value in another table. foreign key वो की होती है जो दो टेबल्स को आपस में मिलाती है। थर्ड है यूनिक कॉन्स्टेंट. इंश्योर दैट ईच वैल्यू इन अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इज़ यूनिक. ये हमें श्योर करवाती है कि हर कॉलम जो है उसके अंदर एक यूनिक वैल्यू है, एक नई वैल्यू है, सेम नहीं है. नॉट नल कॉन्स्टेंट. प्रिवेंट अ कॉलम फ्रॉम कंटेनिंग नल वैल्यू इट इंक्लूड इन द डेफिनेशन ऑफ टेबल. ये किसी भी कंस्ट्रेंट को ज़ीरो भी खैर एक वैल्यू होती है, खाली नहीं, नल नहीं होने देती. उसके बाद है चेक कंस्ट्रेंट. लिमिट्स द वैल्यूज डैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द कॉलम बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन. एक वैल्यू की लिमिट क्या है, वो कहाँ तक इंसर्टेड की जा सकती है. यानी कि अगर एज है तो एज की क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 150 या 200 रेंज हो जाएगी साल में. इससे ज़्यादा की वैल्यू, हज़ारों की तादाद में उसकी वैल्यू एंटर नहीं की जा सकती. इस चीज़ का ख्याल रखता है ये. 6 है डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट.
specifies a default value for a column that is used when a value is not provided during an insert operation. It used for efficiency purpose. डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रेंट क्या है कि जब आप कोई नाम लिख देते हैं लेकिन उसे कोई वैल्यू नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद ही उसे वैल्यू दे देता है। तो इसका आंसर होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इन्फोर्स एंटिटी इंटेग्रिटी? ए प्राइमरी की, बी फॉरेन की, सी चेक, डी नन ऑफ दिस। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं सारी। सबसे पहले है प्राइमरी की। इट इज़ यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. इट इज़ यूज टू इन्फोर्स डेटा इंटेग्रिटी एंड टू इंश्योर दैट ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। हमने इसे पहले भी देखा कि जो प्राइमरी की है वो बताती है कि हर रो के अंदर जो है रो और कॉलम जो है वो यूनिक हों, नए हों, पहला वाला जो है वही रिपीट ना हो रहा हो। उसके बाद फॉरेन की, इट्स अ फील्ड इन टेबल दैट रेफर्स द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ये दो टेबल्स को मिलाती हैं। उसके बाद है कैंडिडेट की, ये नहीं है। इट इज़ अ सेट ऑफ वन और मोर कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इन अ टेबल. It is similar to the primary key but it has not been designated as the primary key. उसके बाद है super key. It is a set of one or more columns that can uniquely identify a record in a table. It may contain more columns than a candidate key but it may not be minimal. सुपर की एक ऐसी की होती है जिसे हम प्राइमरी की के साथ मिला के यूज़ करते हैं। अल्टरनेट की, it is candidate key that has not been chosen as the primary key. वो जो प्राइमरी की के तौर पे नहीं चुनी गई वो सारी बाकी जो बची हैं वो अल्टरनेट की हैं। सेकेंडरी की, many times we need to access certain instances of an entity type using the values of one or more attributes other than the primary key. तो इसका करेक्ट आंसर होगा none of these. Question number 5 है, which constraint is generally used for efficiency purpose in the data entry process? A null value, B integer value, C default value, D string value. तो null value क्या है? This refers to a lack of value in a column and is not generally used for efficiency purpose. इस तरह हमने पहले constraint में भी देखा था कि null value क्या है कि किसी ब्लॉक के अंदर वो वैल्यू को नल नहीं होने देती, कॉलम के अंदर या किसी भी जगह पे वैल्यू नल ना हो जाए। इंटीजर वैल्यू, दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द कॉलम बट इट इज़ नॉट अ कंस्ट्रेंट दैट इज़ यूज फॉर एफिशिएंसी पर्पस। जो नल वैल्यू है वो एफिशिएंसी पर्पस के लिए यूज़ होती है लेकिन इंटीजर वैल्यू एफिशिएंसी पर्पस के लिए यूज़ नहीं होती। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, this constraint is used to specify a default value for a column in a table. String value. A string value is a sequence of characters that typically represent text data, but not for efficiency purposes. So इसका correct answer होगा default value. Question number 6 है, which of the following is incorrect about naming entities? Singular nouns are used. B write in capitals. C organization specify names can be used. D always use abbreviation as they are convenient. इसकी डिटेल देख लेते हैं। नेमिंग एंटिटीज़ जो हैं उन्हें क्या रिक्वायर होता है? सबसे पहले कि सिंगुलर नाउन्स हों। सिंगुलर नाउन्स आर टिपिकली यूज्ड व्हेन नेमिंग एंटिटीज़. फॉर एग्जांपल यू वुड रेफर द कंपनी इंस्टेड ऑफ द कंपनीज, यानी कि आप जो नाम लिखें वो सिंगुलर में हों। आप कंपनीज नहीं लिख सकते, कंपनी लिखेंगे अगर किसी कंपनी को नाम देना है तो। कैपिटलाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. द फर्स्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड इन द एंटिटी नेम शुड बी कैपिटलाइज्ड. किसी भी कंपनी का आप नाम लिखते हैं तो पहला जो उसका लेटर है उसे कैपिटल होना चाहिए, जैसे ये कोका कोला की एग्जाम्पल दी हुई है। उसके बाद थर्ड है, व्हेन नेमिंग ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ appropriate to use their specific names. For example, you would write Microsoft Corporation instead of just Microsoft. Fourth है, abbreviations can be used when naming entities, but it is important to only use them when they are commonly known.
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑलवेज यूज एब्रिवेशंस एज दे आर कन्वीनियंट। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाडाटा। ए अली, बी एड्रेस, सी पर्सन, डी स्टूडेंट। तो metadata is a set of data that describe and give information about other data। यानी कि जो डाटा स्टोर किया हुआ है उस डाटा के बारे में जो डाटा रखा हुआ है वो metadata होगा। इन दिस केस एड्रेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनस लोकेशन विच कैन बी कंसिडर्ड metadata। यानी कि जो एड्रेस है इन ऑप्शंस में वो एक ऐसा डाटा है जो स्टोर डाटा के बारे में बता रहा है कि कौन सा एड्रेस। इसके अलावा जो अली, पर्सन, स्टूडेंट हैं वो कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, उनका आगे कोई डाटा स्टोर नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 8 है लेवल ऑफ डाटा एट विच एंटिटीज और ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी इज कॉल्ड। ए रियल वर्ल्ड डाटा, बी स्कीमा ऑफ रियल वर्ल्ड डाटा, सी मेटाडाटा, डी डाटा अबाउट डाटा। तो लेवल्स ऑफ डाटा एंड देयर ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। कितने लेवल्स हैं डाटा के? 7। फर्स्ट इज रॉ डाटा, अनप्रोसेस्ड अनऑर्गेनाइज्ड डाटा दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स। बी प्रोसेस्ड डाटा, रॉ डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड एनालाइज्ड। एक डाटा जिसे अभी प्रोसेस नहीं किया गया वो रॉ डाटा होगा और प्रोसेस होने के बाद वो डाटा प्रोसेस्ड डाटा हो जाएगा। Metadata, data that provide information about another data such as data, dictionaries और schemas। Metadata हमने पहले भी देखा था कि वो डाटा जो स्टोर डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी। यूज़र जनरेटेड डाटा, डाटा क्रिएटेड बाय यूजर्स सच एज सोशल मीडिया पोस्ट्स और कमेंट्स। रियल टाइम डाटा, डाटा that is generated and processed immediately such as data from sensor और IoT devices। Big data, extremely large and complex data। Real world data, the level of data at which entities or objects exist in reality is called real world data। तो करेक्ट आंसर होगा रियल वर्ल्ड डाटा। क्वेश्चन नंबर 9 है देयर आर डैश बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटाबेस रिलेशन। ए 4, बी 3, सी 6, डी 2। तो द 6 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस रिलेशंस आर। फर्स्ट है यूनिक रोज, हर रो यूनिक हो, नहीं हो, डुप्लीकेट ना हो। सेकंड है एटॉमिक वैल्यू, ईच सेल टेबल कंटेन एटॉमिक सिंगल वैल्यू, यानी कि हर जो सेल है उसमें सिर्फ एक वैल्यू ही स्टोर होगी। थर्ड है ऑर्डर्ड कॉलम, द कॉलम्स इन अ रिलेशन मस्ट बी ऑर्डर्ड बट द रोज कैन बी इन एनी ऑर्डर, यानी कि कॉलम जो है पहले कौन सा आएगा दोबारा अगला कौन सा, वो सारे ऑर्डर्ड होने चाहिए, लेकिन रोज आगे पीछे हो सकती हैं। Columns have names. Each column in a relation must have a unique name. Rows are unordered. The order of the rows in a relation is immaterial and has no effect on the meaning of the data. 6. No repeating groups. A relation should not contain any repeating groups of columns. तो इसका correct answer होगा 6. Question number 10 है How many types of dependencies are? A 1, B2, C3, D4। There are 3 types of dependencies. First, functional dependency, when the value of one attribute determines the value of another attribute. Second, transitive dependency, when the value of one attribute determines the value of another attribute through a third attribute. Third है multi-valued dependency, when the value of one attribute determines the value of other attribute in a different table। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 11 है इन डैश जॉइन only selected rows of a relation are made cross product with second relation। A normal, B theta, C outer, D semi। तो फर्स्ट थीटा है जो टेबल्स और कॉलम्स की यूनिकनेस को शो करता है। सेकंड इक्वी जॉइन है जो 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करता है। उसके बाद सेमी ज्वाइन है, फिर नेचुरल ज्वाइन और आउटर ज्वाइन।
सेमी जॉइन है ओनली सिलेक्टेड रोज़ को शो करता है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद। और नेचुरल जॉइन क्या है कि अगर हम कहें कि वाला सिंपल जॉइन, तो सिंपल जॉइन जो होती है वो नेचुरल जॉइन होती है। outer join, an outer join is a type of join that includes all the rows from one or both of the tables being joined, including the non-matching rows. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेमी जॉइन। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्री लाइक डेटाबेस डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ डैश। ए hierarchical data model, B semantic data model, C relational data model, D network data model। तो ये हमने पहले देखे थे hierarchical data model, semantic data model, relational और network। तो इसमें hierarchical tree like था, semantic data model जो था वो मीनिंग और रिलेशनशिप्स के लिए था, relational data model जो था वो डाटा को टेबल्स में स्टोर करता था और नेटवर्क डाटा मॉडल जो है वो ग्राफ्स में स्टोर करता था। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा hierarchical data model, क्योंकि हमें ट्री लाइक डेटाबेस के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है which of the following constraint means that if we do not give any value to any particular attribute it will be given a certain value। A null value, B integer value, C default value, D string value। तो ये कंस्ट्रेंट भी हमने देखे थे पहले। फर्स्ट प्राइमरी था, सेकंड फॉरेन था, थर्ड यूनिक, फोर्थ नोट नल कंस्ट्रेंट था, फिर चेक कंस्ट्रेंट था और फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू था। तो इसका हमारे पास आंसर होगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्योंकि यही होता है जब हम किसी एट्रीब्यूट को वैल्यू नहीं देते तो जो ऑटोमेटिकली उसे वैल्यू असाइन कर देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है डैश इज सिमिलर टू अ प्राइमरी की। ए प्राइमरी की, बी फॉरेन की, सी सुपर की, डी कैंडिडेट की। तो ये भी हमने पहले देखे थे, प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर, अल्टरनेट और सेकेंडरी की। प्राइमरी की जिससे हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं टेबल के अंदर से, वो प्राइमरी की होती है। फॉरेन की किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की हमारे टेबल में हो तो वो फॉरेन की होगी। कैंडिडेट की होती है, उसके बाद एक सुपर की होती है, अल्टरनेट की होती है। जो प्राइमरी की के अलावा बाकी सारी जो कीज़ होती हैं वो अल्टरनेट की होती हैं और एक सेकेंडरी की होती है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट की। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्री लेवल आर्किटेक्चर। एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल या डी फिजिकल लेवल। तो इसमें द थ्री लेवल आर्किटेक्चर इज कॉमन आर्किटेक्चरल मॉडल यूज्ड फॉर डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। It consists of three main level. First is internal level, second physical level, third external level. Internal level क्या है? This level represent the physical storage and organization of data in the system and is responsible for managing the actual data storage devices. Second physical level है, this level represent the actual physical location of the data in the system and is responsible for managing in the physical storage devices. थर्ड एक्सटर्नल लेवल है, दिस लेवल रिप्रेजेंट द यूजर्स व्यू ऑफ द सिस्टम एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग डाटा इन अ वे। यानी कि इंटरनल में स्टोरेज कौन सी होगी ये बताता है, फिज़िकल में हमें नज़र क्या आता है कहाँ पे स्टोर है, हमारे फोल्डर्स वगैरह वो बताता है। और उसके बाद जो एक्सटर्नल डाटा है वो एक जो यूज़र यूज़ कर रहा है, नहीं सॉरी, फिज़िकल में वो बताता है ये हार्ड डिस्क में स्टोर है, ये सर्वर में स्टोर है, ये नेटवर्क में स्टोर है। और जो एक्सटर्नल लेवल है इसमें वो बताता है कि वो आपके जो फोल्डर वगैरह होते हैं किस फोल्डर में स्टोर है। तो इस तरह, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्सेप्चुअल लेवल। क्वेश्चन नंबर 16 है द डाटा दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डाटा इज कॉल्ड। ए रियल वर्ल्ड डाटा, बी स्कीमा फॉर रियल वर्ल्ड डाटा, सी मेटाडाटा, डी डाटा अबाउट डाटा। तो इसे हमने इतनी दफ़ा पढ़ लिया है, अब आपको पता चल गया होगा कि इसका जो है वो है कि मेटाडाटा। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका ये सब्सक्राइब ही बताएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियोस नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए बनानी है या नहीं बनानी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 है ईच डैश ऑफ अ टेबल contains atomic single value
A cell, B row, C column, D record. So the 6 basic properties of database relations are unique rows, atomic values, ordered columns, column have names, rows are unordered, no repeating groups. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल. यूनिक रोज में ईच रो इन द रिलेशन मस्ट बी यूनिक. एटॉमिक वैल्यू हमने देखी थी, ईच सेल ऑफ द टेबल कंटेन अ एटॉमिक सिंगल वैल्यू. तो इसका आंसर इसीलिए सेल होगा. तो क्वेश्चन नंबर 18 है द ऑर्डर ऑफ द रोज एंड कॉलम्स इन अ रिलेशन इज डैश. इमटेरियल, मटेरियल, बोथ, नन ऑफ दिस. तो इसमें भी हमने देखा था 6 बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. जो फर्स्ट वाली है वो यूनिक रोज़ हैं, सेकंड वाली एटॉमिक वैल्यूज़ हैं, थर्ड ऑर्डर कॉलम्स, 4 कॉलम हैव नेम्स, फिर रोज़ आर अनऑर्डर्ड और फिर नो रिपीटिंग ग्रुप्स. तो इसका करेक्ट आंसर होगा इमटेरियल. क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी, ट्रांसपेरेंट डिपेंडेंसी, मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी या नन. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज हमने देखी थी. पहली फंक्शनल है, दूसरी ट्रांजिटिव है, तीसरी मल्टी वैल्यूड है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि ये जो लिखी हुई है ये इसकी डेफिनेशन है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20. थीटा ज्वाइन इज डोनेटेड मैथमेटिकली एज ए आर इंटू एस, बी आर मल्टीप्लाई सी आर इंटू ये एक साइन है, उसके बाद एस और फिर डी आर इंटू आर एस. इसे देख लेते हैं. थीटा ज्वाइन का जो सिर्फ इसमें थीटा ज्वाइन का एक साइन जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद कर लेना है. आर मल्टीप्लाई साइन के बाद एस है. तो हमारे पास इसका आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 21 है ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर डेटाबेस डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ डैश. ए हायरार्चिकल डेटा मॉडल, बी सिमेंटिक डेटा मॉडल, सी रिलेशनल डेटा मॉडल, डी नेटवर्क डेटा मॉडल. तो हमने देखा था हायरार्चिकल डेटा मॉडल ट्री लाइक है, सिमेंटिक मीनिंग और रिलेशनशिप्स के लिए है, रिलेशनल डेटा मॉडल टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करता है, और नेटवर्क डेटा मॉडल ग्राफ की फॉर्म में. तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा नेटवर्क डेटा मॉडल. क्वेश्चन नंबर 22 है विद इन अ टेबल ईच प्राइमरी की वैल्यू डैश. ए इज़ अ मिनिमल सुपर की, बी इज़ ऑलवेज द फर्स्ट फील्ड इन ईच टेबल, सी मस्ट बी न्यूमेरिक, डी मस्ट बी यूनिक. तो हमने देखा कि जो प्राइमरी की है इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. सो इसका करेक्ट आंसर होगा मस्ट बी यूनिक. क्वेश्चन नंबर 23 है डैश लेवल रिप्रेजेंट द एक्चुअल फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा इन द सिस्टम एंड मैनेजिंग द फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस themselves. ए एक्सटर्नल लेवल, बी conceptual लेवल, सी इंटरनल लेवल, डी फिजिकल लेवल. तो ये हम 3 लेवल आर्किटेक्चर होता है. फर्स्ट इंटरनल लेवल होता है जो फिज़िकल स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा बताता है. सेकंड फिज़िकल लेवल होता है which represent the actual physical location of the data, and third is external level which represent the user view of the system. तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिजिकल लेवल. Each dash in the relation must be unique. A column, B cell, C row, D all of the above. तो इसमें यूनिक रोज, एटॉमिक वैल्यूज़ थी, ऑर्डर्ड कॉलम्स, और ये हमने 6 के 6 पहले भी पढ़े थे. तो इसमें जो है ईच रो इन द रिलेशन मस्ट बी यूनिक. ये हर जो रो है वो यूनिक होनी चाहिए. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है व्हेन द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट थ्रू अ थर्ड एट्रीब्यूट इज कॉल्ड. तो इसके 3 टाइप्स हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकंड ट्रांजिटिव और थर्ड मल्टी वैल्यूड. तो जो फंक्शनल है वो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, जो ट्रांजिटिव है वो वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट थ्रू अ थर्ड एट्रीब्यूट, और जो मल्टी वैल्यूड है वो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अदर एट्रीब्यूट इन अ डिफरेंट टेबल. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. क्वेश्चन नंबर 26 है यूनरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व अ सिंगल एंटिटी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डैश.
वन टू वन रिलेशनशिप, बी वन टू मैनी, सी मैनी टू मैनी, डी रिकर्सिव। तो बाइनरी रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश बिटवीन टू एंटिटी टाइप्स। सबसे पहले मैनी टू मैनी है, उसके बाद वन टू वन है, वन टू मैनी है और मैनी टू वन है, यानी कि वन और मैनी के दरमियान। तो सेकेंड है यूनरी रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ ऑफ द सेम टाइप। फॉर एग्जांपल द रिलेशनशिप बिटवीन अ सुपरवाइज़र एंड अ सबऑर्डिनेट इन ऑर्गेनाइजेशन। यूनरी ये है कि दोनों साइडों पे एक एक हो तो वो यूनरी होता है। टर्नरी रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन थ्री एंटिटीज़ टाइप्स। तीन लोगों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो टर्नरी है, यानी कि द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टूडेंट, अ कोर्स एंड अ टीचर इन अ यूनिवर्सिटी। उसके बाद रिकर्सिव रिलेशनशिप बिटवीन एन एंटिटी एंड इट्सेल्फ। एक किसी इंसान का खुद अपने साथ जो रिलेशन है वो रिकर्सिव होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉय एंड देयर मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। तो इसका करेक्ट आंसर वन टू वन रिलेशनशिप होगा, आंसर लगा नहीं हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है डेटाबेस एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन सच एज डैश, insertion of data, extraction of data, updating of data, all of the above. So a database application is a program that is used to interact with the database and perform operation. कौन से operation? Insertion of data, second extraction of data, third updating of data, fourth deletion of data. Insertion data क्या है कि डाटा को एंटर करना, एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा है डाटा को निकालना, अपडेटिंग ऑफ डाटा है कि जो डाटा मौजूद है उसमें कुछ और ऐड या रिमूव या वट एवर करना, और डिलीटिंग है किसी डाटा को ख़त्म करना। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 है इन नेचुरल ज्वाइन द कॉमन एट्रीब्यूट इन द आउटपुट टेबल अपीयर्स डैश, ए ट्विस, बी 3 टाइम्स, सी 4 टाइम्स, डी वंस। तो नेचुरल ज्वाइन में देख लेते हैं ज्वाइन डैट मैचेस कॉलम्स विद द सेम नेम इन टू टेबल्स, इट इज़ सेम एज इक्वी ज्वाइन विद अ स्लाइट डिफरेंस, इट अपीयर्स ओनली वंस इन द आउटपुट टेबल। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वंस। क्वेश्चन नंबर 31 है इन डैश डाटा मॉडल डाटा ऑर्गेनाइज इनटू टेबल्स, हायरार्किकल डाटा मॉडल, सिमेट्रिक डाटा मॉडल, रिलेशनल डाटा मॉडल या नेटवर्क डाटा मॉडल। तो किस डाटा मॉडल में जो डाटा ऑर्गेनाइज है वो टेबल की फॉर्म में होता है? तो हमने देखा था हायरार्किकल में ट्री में होता है, सिमेंटिक मीनिंग और रिलेशनशिप्स में है, रिलेशनल जो है वो टेबल्स में है और नेटवर्क ग्राफ लाइक में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिलेशनल डाटा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टेबल, ए नल वैल्यू, बी इंटीजर वैल्यू, सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डी स्ट्रिंग वैल्यू। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हमने देखा था फॉरेन था, उसमें यूनिक था, नॉट नल, चेक और डिफ़ॉल्ट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा नल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 33 है द फॉरेन की एट्रीब्यूट विच इज़ प्रेजेंट एज अ प्राइमरी की इन अनदर रिलेशन इज कॉल्ड एज डैश ऑफ द फॉरेन की एट्रीब्यूट, बाइनरी रिलेशन, बी कंपोजिट रिलेशन, सी होम रिलेशन, डी रिकर्सिव रिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा होम रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है कैंडिडेट कीज विच आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड, ए सेकेंडरी की, बी फॉरेन की, सी अल्टरनेट की, डी कंपोजिट की। तो हमने देखा था कि जो प्राइमरी की है वो की होती है जिससे हम कुछ सर्च करते हैं, फॉरेन की किसी और ग्रुप की प्राइमरी की हमारे पास होती है, कैंडिडेट की जो होती है वो वन और मोर कॉलम्स के लिए होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, सुपर की होती है, अल्टरनेट की एक ऐसी की होती है जो प्राइमरी की के अलावा जो भी की हो वो अल्टरनेट की होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अल्टरनेट कीज़। क्वेश्चन नंबर 35 है डैश लेवल रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ए एक्सटर्नल लेवल, बी कॉन्सेप्चुअल लेवल, सी एक्सटर्नल लेवल, डी फिजिकल लेवल। तो हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर है जिसमें फर्स्ट इंटरनल लेवल है जो रिप्रेजेंट करता है फिज़िकल स्टोरेज को, दूसरा फिज़िकल लेवल है जो रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल फिज़िकल लोकेशन डाटा की क्या है,
और थर्ड है एक्सटर्नल लेवल, जो रिप्रेजेंट करता है कि यूज़र्स व्यू क्या है, यूज़र किस तरह देखता है कि सिस्टम में किस तरह डाटा स्टोर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनल लेवल। क्वेश्चन नंबर 36 है ईच टेबल मस्ट हैव अ डैश की। ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी लॉजिकल, डी फॉरन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 37 है when the value of one attribute determines the value of another attribute in a different table is called A functional dependency, B transitive dependency, C multi-value dependency, D none। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो थी वो क्या है कि वन एट्रीब्यूट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, जब एक एट्रीब्यूट किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन तो करता है लेकिन किसी तीसरे एट्रीब्यूट के ज़रिए, तो वो ट्रांजिटिव है। और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या है कि मुख्तलिफ टेबल्स के ज़रिए जब एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 38 है स्टूडेंट एंड बुक आर टू एंटिटीज़, व्हाट इज़ द कार्डिनलिटी बिटवीन द टू। इसमें कार्डिनलिटीज़ जो हैं वो मैनी हो सकती हैं, 1 to 1 हो सकती हैं, 1 to मैनी और मैनी टू 1। मैनी टू 1 क्या है कि, बल्कि मैं आपको इसी की एग्जांपल देती हूँ जो हमारे पास है। स्टूडेंट और बुक, एक स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा बुक्स हो सकती हैं लेकिन एक बुक एक ही स्टूडेंट की हो सकती है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट 1 होगा, बुक्स ज़्यादा हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा 1 to मैनी। क्वेश्चन नंबर 39 है dash operation involves modifying existing data in the database. A insertion, B extraction, C updating, D all of the above। तो जो इंसर्शन है वो किसी डाटा को एंटर करता है, एक्सट्रैक्शन उस डाटा को बाहर निकालता है या कह लें कि डिस्प्ले करता है। अपडेटिंग जो है वो इन्वॉल्व मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डाटा, और डिलीशन जो है उस डाटा को डिलीट करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अपडेटिंग द डाटा। क्वेश्चन नंबर 40 है एटॉमिसिटी इज़ अ फीचर ऑफ डैश 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। तो 1NF जो है वो एटॉमिसिटी इज़ अ फीचर ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। 2NF जो है वो रिक्वायर दैट ऑल नोन की एट्रीब्यूट इन अ टेबल बी डिपेंडेंट ऑन द टेबल्स इंटायर प्राइमरी की। 3NF required that all the known key attribute in a table be dependent only on the primary key and not on other known key attribute. BCNF required that every determine in a table be candidate key. 2NF, 3NF and BCNF are all based on the concept of functional dependencies। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1NF। क्वेश्चन नंबर 41 है द एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज़ नॉट स्टोर्ड इन अ डेटाबेस इज़ नोन एज डैश एट्रीब्यूट। ए स्टोर्ड, बी सिंगल वैल्यू, सी मल्टी वैल्यू, डी ड्राइव्ड। तो एट्रीब्यूट्स में भी डिफरेंट टाइप्स, दे मे हैव सिंपल एट्रीब्यूट्स, एन एट्रीब्यूट दैट इज़ अ सिंगल होल इन अ सिंपल एट्रीब्यूट। जो एक सिंपल एक होल एट्रीब्यूट होगा वो सिंपल एट्रीब्यूट होगा, जैसे कि एस टी नेम ऑफ एन एंटिटी टाइप स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का एक टेबल है तो उसके अंदर एक जो कॉलम है एस टी नेम, वो एक सिंपल एट्रीब्यूट होगा। उसके बाद है सेकंड कंपोजिट एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ द अदर सिंपल और कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल एस टी एड्रेस एट्रीब्यूट में कंप्राइज ऑफ हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया कोड, सिटी etc। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है कि एक एट्रीब्यूट यानी कि एक जो कॉलम है हमारे पास टेबल के अंदर, उसके भी अगर आगे से बहुत सारे हिस्से हों, जैसे अगर हम कहें कि एड्रेस, तो एड्रेस के अंदर आपको हाउस नंबर बताना पड़ता है, स्ट्रीट नंबर, एरिया कोड, सिटी बताना पड़ता है, और अगर नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको कंट्री भी बताना पड़ता है। थर्ड है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। सम एट्रीब्यूट हैव सिंगल वैल्यू एट ए टाइम। फॉर एग्जांपल हॉबी एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टूडेंट। मतलब हम कहते हैं कि स्टूडेंट एक ही हॉबी बता सकता है तो वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएगा। फोर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सम अदर्स में हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल स्किल्स एट्रीब्यूट ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की स्किल्स कौन कौन सी हैं तो वो उसमें जितनी मर्जी लिख सकता है तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो जाएंगी।
Fifth, stored attributes. Stored attributes, that is their values are stored and accessed from the database. Stored attributes क्या हैं? जो स्टोर किए जा सके और बाद में उन्हें एक्सेस किया जा सके डेटाबेस से. स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट. Thus attributes whose values are not stored as such but computed or derived from other values. जो स्टोर नहीं होते लेकिन जो डेटा स्टोर है उनसे हम ड्राइव कर सकते हैं, उन्हें ड्राइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं. जैसे अगर हम ये डेट ऑफ बर्थ लिख दें 22 मार्च 2015, किसी की हमने डेट ऑफ बर्थ सेव कर दिया है तो हम जब मर्ज़ी उसकी एज मालूम कर सकते हैं, तो वो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर है ड्राइव्ड. क्वेश्चन नंबर 42 है, सपोज अ रिलेशन हैज़ 5 कॉलम्स एंड 10 rows. Select the correct option to identify cardinality of the relation. तो the cardinality of the relation can be calculated by the counting the number of tuples or rows in the relation. यानी कि जितनी रोज़ होंगी उतनी कार्डिनलिटीज़ होंगी. तो हमारे पास करेक्ट आंसर है 10. क्वेश्चन नंबर 43 है, द मैक्सिमम PL SQL साइज ऑफ डाटा टाइप ब्लॉब in DBMS is A 4 GB, B 8 GB, C 10 GB, D 12 GB. तो इसमें जो 4 एंड बार 4 हैं उसकी जो बाइट्स हैं वो 32767 बाइट्स हैं. नंबर की 38 डिजिट्स ऑफ प्रीशियस है. डेट 7 बाइट है. बूलियन 1 बाइट है. बाइनरी इंटीजर जो है वो 4 बाइट है. रॉ 32767 बाइट्स हैं. लॉन्ग 2 GB है. ब्लॉब 4 GB है. क्लॉब 4 GB है और एन क्लॉब भी 4 GB है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 GB. क्वेश्चन नंबर 44 है, द मैक्सिमम PL SQL साइज ऑफ डाटा टाइप वारचार 2 इन DBMS इज डैश. तो ये हमने देखा था कि मैक्सिमम PL SQL साइज ऑफ डाटा टाइप वारचार इन DBMS इज 32767 बाइट्स. तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 45 है, द मैक्सिमम PL SQL साइज ऑफ डाटा टाइप लॉन्ग इन DBMS इज. तो लॉन्ग का इसमें 2 GB है. तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 46 है, एन एट्रीब्यूट दैट इज़ अ सिंगल होल इज़ अ डैश एट्रीब्यूट. ए स्टोर्ड, बी सिंपल, सी मल्टी वैल्यू, डी ड्राइव्ड. तो एट्रीब्यूट में बी ऑफ डिफरेंट टाइप. दे में बी सिंपल, कंपोजिट, सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, स्टोर्ड, ड्राइव्ड. इन्हें हमने अभी डिटेल से देखा था. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सिंपल. क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश आर कॉन्सेप्ट बेस्ड फंक्शनल डिपेंडेंसीज. ए 2NF, बी 3NF, सी PCNF, डी ऑल ऑफ दीज. तो इन्हें भी हमने डिटेल से देखा था. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी जो हैं तीनों ये कॉन्सेप्ट डिपेंडेंसी से हैं और 1NF सिर्फ कॉन्सेप्ट डिपेंडेंसी नहीं है. क्वेश्चन नंबर 48 है, डैश ऑपरेशन इन्वॉल्व्स रिमूविंग डाटा फ्रॉम द डाटाबेस. इंसर्शन, एक्सट्रैक्शन, अपडेटिंग, डिलीशन. इंसर्शन डाटा को एंटर करता है. एक्सट्रैक्शन जो है वो बाहर निकालता है डाटा को, या डिस्प्ले करता है. अपडेटिंग उसे अपडेट करता है और डिलीशन उसे जो है रिमूव करता है. तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिलीशन ऑफ डाटा. क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ एन एंटिटी मोटरसाइकिल इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन ड्राइवर, देन द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंटिटीज इज 1 to 1, 1 to many, many to many या many to 1. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 to 1, क्योंकि एक मोटरसाइकिल सिर्फ एक ड्राइवर के पास हो सकती है और एक ड्राइवर एक वक्त में एक ही मोटरसाइकिल चला सकता है. तो इसका आंसर 1 to 1. क्वेश्चन नंबर 50 है, डैश लेवल रिप्रेजेंट द यूजर्स व्यू ऑफ द सिस्टम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग डाटा. ए एक्सटर्नल, बी conceptual, सी इंटरनल, डी फिजिकल. तो इसका करेक्ट आंसर है फिजिकल लेवल.